dear students. In the previous class we have discussed about the very important experiment performed by Hershey and Chase, and the experiment was known as the transduction experiment, which now unequivocally proves that DNA is the genetic material in most of the organisms, whereas RNA was just a genetic material found in some organisms like viruses. We have also seen about what are the properties of the genetic material. We have seen that the genetic material should be able to replicate, it should be able to express in the terms of Mendelian characters, it should be chemically and structurally stable, and it should undergo only very slow mutations which are essential for evolution. So these were the properties of the genetic material discussed by us in the previous class. Moving on to the next topic in the chapter, that is the process of DNA replication. DNA replication मतलब DNA का डबल होना. DNA का डबलिंग important क्यों है? Because whenever cell division takes place, each new cell should get a same complement of DNA as in the parental cell. अगर एक parental cell में से दो daughter cells बन रहे हैं तो दोनों ही daughter cells में equal complement of DNA has to be given. And this can be given only if the DNA gets doubled, DNA gets duplicated or replicated. So while studying the double helical structure of DNA, Watson and Crick have proposed a scheme for DNA replication. So while discussing the double helical structure of DNA, Watson and Crick have proposed a scheme for DNA replication. So while they were discussing about, or while they were proving about the double helical structure of DNA, that there are two strands of DNA, bases are complementary to each other, जब ये सब discussion चल रहा था तो साथ साथ में Watson and Crick ने और एक remarkable चीज के बारे में समझाया था, and that is DNA replication. DNA replication के लिए उन्होंने क्या point दिया था? That during DNA replication, the two strands of the DNA get separated and each strand functions as template for synthesis of new strand, right? So two strands of DNA, क्या लिखा है यहाँ पे कि DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसलिए DNA के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनके जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होने वाले. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एडेनाइन है तो यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे ग्वानिन है तो साइटोसिन है तो ग्वानिन. इन दिस वे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल तो होता ही है. तो यहाँ पे टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA जो है वो रेप्लिकेशन के वक्त क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं. मतलब उन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और दो जो DNA के स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो जाएंगे. एंड ईच स्ट्रैंड, हर एक जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है, इट विल फंक्शन एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड. मतलब नया स्ट्रैंड, अगर इसमें से नया स्ट्रैंड बनाना है तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस चाहिए. सिमिलरली इसमें से नया स्ट्रैंड बनाना है तो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस चाहिए. तो दोनों DNA के स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं, दे आर वर्किंग एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड.
and the newly formed DNA has one parental strand and one न्यू स्ट्रैंड, राइट? क्योंकि क्या है कि एक जो स्ट्रैंड है वो पेरेंटल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। तो जब भी डीएनए के एक में से दो मॉलिक्यूल्स बन गए तो यहाँ पे डीएनए के दो मॉलिक्यूल्स में एक क्या है, टेम्पलेट मतलब पेरेंटल, और दूसरा क्या है, न्यू डॉटर स्ट्रैंड। सेम वे हियर दिस वन विल बी पेरेंटल एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द new strand, and this method of replication is known as semi-conservative method of replication. So this method of replication is called semi-conservative replication. What is this method known as? Semi-conservative. Semi-conservative का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जब भी डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा, मतलब नया डीएनए फॉर्म होगा, तो उसमें एटलीस्ट एक कॉपी क्या होगी, पेरेंटल, और दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा, न्यू होगा, राइट? सो देयरफॉर वी से दैट जेनेटिक मटेरियल जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी पास ऑन होता है तो वो एथनिक जो है जेनेटिक मटेरियल वो हमारा पेरेंटल होता है, और फिर हम उसको देख के नई कॉपी डीएनए की बनती है। इसलिए जो पेरेंटल डीएनए है, जो ग्रैंड पेरेंटल डीएनए है, वो सब तो क्या रहेंगे, दे विल बी कंजर्व्ड थ्रू आउट द जनरेशंस, एंड दैट वाज द टोटल एम ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। पर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हमें पता तो चल गया कि दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं और हर एक जो स्ट्रैंड है दैट विल वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर मेकिंग अ न्यू स्ट्रैंड, उसे हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं। बट दिस थिंग वाज एक्सपेरिमेंटली आल्सो प्रूव, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था 1958 में, एंड द रिसर्चर वाज मैथ्यू मिचेल्सन एंड स्टाल, एंड दिस इज कॉमनली नोन एज मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। इट इज नोन एज Michelson and Stahl experiment. So experimentally it was proved by Matthew Michelson and Franklin Stahl in the year 1958 में मिचेल्सन एंड स्टाल ने ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, दैट व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, और सेकेंड मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो आस्क्ड एज अ सेपरेट 3 मार्क और 4 मार्क क्वेश्चन। So Michelson and Stahl, how did they perform their experiment? तो एक्सपेरिमेंट देखने के लिए सबसे पहले first we will have to consider that what Michelson and Stahl were working on. Michelson and Stahl were working on the E. coli bacterial culture, and they grew this E. coli bacterial culture in a medium having heavy isotope of nitrogen. क्या किया था उन्होंने? They grew, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, वी आर ट्राइंग टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन दैट वाज डन बाय मिचेल्सन एंड स्टाल। तो उन्होंने सबसे पहले ई कोलाई को ग्रो किया इन अ मीडियम विथ heavy isotope of nitrogen. heavy isotope of nitrogen मतलब 15NH4Cl, मतलब 15N। नॉर्मल जो नाइट्रोजन होता है वो 14N होता है, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल नाइट्रोजन, पर यहाँ पे उन्होंने 15N मीडियम लिया है, दैट इज हेवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन। हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन के मीडियम में ई कोलाई को ग्रो किया, एंड दैट टू फॉर
सेवरल जनरेशंस मतलब कई सारी जनरेशंस तक उन्होंने 15N मीडियम में ही इकोलाई के कल्चर को ग्रो किया till the whole DNA got labeled with the 15N. Okay, so whole DNA got labeled with 15N. पूरा ही जो DNA है वो 15N से लेबल हो गया है, right? Now after several generations they transferred this E. coli growing in 15N into a medium with the normal nitrogen, right? And then transferred it to the medium with 14N. क्या किया पहले 15N के मीडियम में, हेवी आइसोटोप के मीडियम में काफी सारी जनरेशंस ग्रो होने दी और वो हो जाने के बाद उसे 14N मीडियम में, मतलब जो नॉर्मल जो नाइट्रोजन है उस वाले मीडियम में उसे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मतलब अब जो इकोलाई जिस मीडियम में है वो क्या है 14N। नाउ दिस सेपरेशन, अब ये जो डीएनए है अगर उसे ऑब्जर्व करना हो तो एक मेथड परफॉर्म की जाती है जिसे कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में एक सॉल्ट यूज होता है, एक सोल्यूबल सॉल्ट यूज होता है जिसे कहा जाता है सीजियम क्लोराइड। ओके, दे परफॉर्म डेंसिटी gradient centrifugation using cesium chloride। क्या किया उन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में अगर डीएनए को डाल दिया जाए या बैक्टीरिया को डाल दिया जाए, it will be rotating at a very high speed and you will observe a band like structure और उस बैंड में भी हेवी आइसोटोप अगर है नाइट्रोजन का तो वो डीएनए का बैंड काफी नीचे मिलेगा, और अगर लाइट आइसोटोप है मतलब लाइट है नाइट्रोजन 14N, then the band will be obtained somewhere above that of the 15N. What we are trying to say is that डीएनए को ऑब्जर्व, ये तो एक बैक्टीरियल कल्चर है, चलो देखते हैं थ्रू अ डायग्राम। एक हमने फ्लास्क ले लिया है, ठीक है, उसमें हमने इकोलाई का बैक्टीरियल कल्चर जो है वो ग्रो किया है, ठीक है। तो ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है उनको हम हेवी आइसोटोप में ग्रो कर रहे हैं, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होगा 15N। क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स हमेशा पैर में होते हैं, ठीक है, इसीलिए 2N है, इसलिए 15N, ठीक है। सेम वे फिर उसको हमने क्या किया है, वी हैव ट्रांसफर्ड इट टू अ मीडियम विद 14N। तो अब इस मीडियम में क्या होगा, एक 15N और एक 14N। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक पैरेंटल कॉपी है और एक क्या होगा नया स्ट्रैंड तो मीडियम में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वही यूज करेगा, इसीलिए एक 15N और एक 14N। तो अगर इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन देखा जाए इसका, तो फॉर एग्जांपल बैंड जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। बैंड मतलब डीएनए जो है वो पूरा क्लम्प हो गया है, राइट, सारा कंबाइन हो गया है, और वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जब परफॉर्म किया तो डेंसिटी ग्रेडियंट में हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स विल बी कंबाइनिंग एंड सेटलिंग एट अ पॉइंट। तो अगर 15N15 है तो यहाँ पे अगर बैंड मिल रहा है, तो अगर ये नॉर्मल जो 14N के मीडियम में होगा दैट विल बी स्लाइटली अबाउ ओवर हियर and this will be 15N 14N. So cesium chloride helps the DNA molecules to combine with each other and form a band. तो ये heavy isotope है इसलिए बैंड काफी नीचे मिल रहा है, ये लाइटर नॉर्मल नाइट्रोजन है इसलिए बैंड थोड़ा ऊपर मिल रहा है।
अब उसने ये चीज, ये जो ट्रांसफर किया है 14N के मीडियम में, उसमें ही अलाउड सेवरल जनरेशंस टू ग्रो। सेवरल जनरेशंस टू ग्रो मतलब ई कोलाई की एक जनरेशन को ग्रो होने में कितना देर लगता है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के टाइम में वो डबल हो जाते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ सेवरल जनरेशंस मतलब 20 मिनट्स पे उसने मीडियम को आइसोलेट किया और डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म किया, 60 मिनट्स पे आइसोलेट किया, 40 मिनट्स पे किया, फिर उन्होंने वापस डेंसिटी ग्रेडियंट किया 60 मिनट्स पे, 80 मिनट्स पे, ऐसे वो मीडियम को आइसोलेट मतलब ई कोलाई को आइसोलेट करते गए। एंड दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द डीएनए वेयर इट इज गेटिंग सेटल्ड, राइट। कितना अमाउंट है 15N 14N का या कितना अमाउंट है 15N 15N का, that was being observed in this experiment. So let us further look upon the experiment. So here are the results of the Michelson and Stahl experiment. मतलब उन्होंने पहले 15N मीडियम में इकोलाई बैक्टीरिया को सेवरल जनरेशंस के लिए ग्रो किया, इसलिए सारा ही जेनेटिक मटेरियल जो था that was the whole genetic material that was present was 15N 15N, right? क्योंकि वो DNA जो है it got labeled with the heavy isotope only because medium had only heavy isotope. फिर हमने उसको मतलब उन्होंने ट्रांसफर किया into a medium with नॉर्मल नाइट्रोजन। अब नॉर्मल नाइट्रोजन के मीडियम में अगर ट्रांसफर किया है तो वहां पे डीएनए रेप्लिकेट तो होगा, तो रेप्लिकेशन इज गोइंग टू अकर इन विच मीडियम, 14N। 14N वाले मीडियम में रेप्लिकेशन होगा, जिसका ये मतलब हुआ कि जब यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो दो स्ट्रैंड्स बनेंगे, मतलब दिस विल बी अ पैरेंटल स्ट्रैंड, दिस विल आल्सो बी अ पैरेंटल स्ट्रैंड। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पे भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बनेगा। मतलब टू डॉटर्स जो स्ट्रैंड्स हैं वो न्यू है, पर साथ में जो स्ट्रैंड्स है वो पैरेंटल है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हुआ, 15N 14N, राइट, क्योंकि हमने उसे ट्रांसफर कर दिया है टू अ मीडियम विथ 14N. So here also what will be obtained, 15N 14N. What does this mean? That these two strands got separated और उनके complementary वापस नए strands बन रहे हैं, right? Parental strands जो है they got separated and complementary to the parental strands two new strands have formed which are the daughter strands, right? इसीलिए ये separate हुआ। ये होगा फर्स्ट जनरेशन में, किसमें होगा ये, फर्स्ट जनरेशन में। तो अगर ये फर्स्ट जनरेशन को हम यहां पे ऑब्जर्व करें, जनरेशन 1, तो क्या होगा, बैक्टीरियल कल्चर को 14N मीडियम में ट्रांसफर करने के 20 मिनट बाद बैक्टीरियल कल्चर को जो 15N था, राइट, उसको हमने ट्रांसफर किया कौन से मीडियम में, 14N मीडियम में। 14N मीडियम में ट्रांसफर करने के 20 मिनट्स के बाद पहला रेप्लिकेशन फिनिश हो चुका होगा। तो पहले रेप्लिकेशन में हमें क्या मिलेगा, 15N 14N, राइट। दोनों ही स्ट्रैंड्स कैसे होने वाले हैं, 15N 14N। इसलिए हमें एक ही बैंड मिला when we perform cesium chloride density gradient centrifugation। सेंट्रीफ्यूगेशन में सीजियम क्लोराइड जो है वो डीएनए के साथ मिक्स हो जाएगा एंड इट विल बी टेकिंग और सेटलिंग एट अ पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी। डेंसिटी के बेसिस पे एक जगह पे वो सेटल हो जाएगा। वो कहां पे सेटल होगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी डेंसिटी पे, ठीक है। तो 15N वाले मीडियम वाला जो था दैट गॉट सेटल्ड ओवर हियर। अब हम उस मीडियम में रहने देते हैं वापस दूसरी 20 मिनट, मतलब टोटल कितने मिनट हो गई, 40 मिनट्स, राइट, क्योंकि पहली जनरेशन 20 मिनट्स पे मिल रही है, फिर दूसरी कितने पे मिलेगी और 20 मिनट्स, मतलब 40 मिनट्स पे। तो जो दूसरी जनरेशन मिलेगी वो कैसी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास पैरेंटल स्ट्रैंड्स कितने होंगे, 1 2, ये दोनों पैरेंटल होंगे। अगेन these two also will be parental for the synthesis of new strand, right? But the medium is 14N, so what we are going to get,
like this you are going to get. We have taken all 4 parents, क्योंकि ये दोनों सेपरेट होंगे तो ये दोनों भी पेरेंटल स्ट्रैंड्स हुए, ये दोनों सेपरेट होंगे, ये दोनों भी पेरेंटल स्ट्रैंड्स हुए, पर मीडियम कौन सा है 14n, इसीलिए ये दोनों जो स्ट्रैंड्स है दे विल बी 15n 14n 15n 14n, बट इंटरमीडिएट जो 2 स्ट्रैंड्स है वो 14n होंगे, क्योंकि मीडियम कैसा है 14n 14n। तो यहाँ पे हमें 2 बैंड्स मिलेंगे, 15n 14n का एक बैंड मिलेगा और 14n 14n का दूसरा बैंड मिलेगा। क्यों ये वाला बैंड ऊपर है और ये नीचे है? ये 14n वाला बैंड इसीलिए है क्योंकि वो नॉर्मल नाइट्रोजन में है, इसलिए इट इज लाइटर इन इट्स वेट, लाइटर इन इट्स डेंसिटी, सो इट इज ऑब्टेन्ड अबव, whereas 15n 14n इज हेवियर, उसमें हेवी आइसोटोप था, इसलिए वो कहां पे मिलेगा? नीचे। इसलिए 2 बैंड्स देखने को मिलेंगे आफ्टर 40 मिनट्स। मतलब कौन सी जनरेशन? सेकेंड जनरेशन जो है, दिस जनरेशन विल हैव 50%। 50% क्या होगा? 15n 14n and 50% will be 14n 14n. Are you getting it? Now imagine after this the third generation. Third generation में कितने parental strands होंगे? This is the first parental strand. This will be the last one, right? बाकी कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there will be 6 more parents, right? अब सबकी रेप्लिका बनेगी। So 15 and this one will remain, 15 and 14n, this one will remain 15 and 14n, पर बाकी के सारे कैसे हैं? 14n 14n, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14 and 14n बैंड जो है that is increasing, क्योंकि उसका अमाउंट जो है अब वो 50-50 नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है? 75-25, right? What it has become? 75 is 14 and 14n and 25 is 15 and 14n. If still you keep it for further 20 minutes, मतलब 80 minutes के बाद, तो 80 minutes के बाद वापस सारे ही parental consider होंगे। And imagine how many replicas of E. coli genetic material will be obtained. तो ये जो amount हो जाएगा, that is going to be 12.5, nearly 12.5 क्या हो जाएगा? 15n 14n, और बाकी का 87.5 will be 14n 14n. In this way, the amount of 14n 14n, why it is increasing? क्योंकि आप कौन से मीडियम में रेप्लिकेट कर रहे हो? 14n मीडियम में रेप्लिकेट कर रहे हो, जो एक नॉर्मल मीडियम है। This shows that every time the DNA replicates, parental copies जो है वो तो रहती ही है, पर साथ में जो नई कॉपी बनती है वो नई है, and that is complementary to the parental strand, and this method of replication is known as semi-conservative method of replication, which was proved by Michelson and Starr. So in the next lecture we will discuss about the process of DNA replication.